Hey guys, and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood. My name is Manish and I'm here with all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Deepika Padukone gives us a glimpse of her shoot on a rainy day. Rhea Kapoor receives a warm welcome from sister-in-law Karishma Bulani. Siddharth Malhotra shares a glimpse of how the Shershah team recreated the Kargil War. Is Salman Khan set to play the lead in the much-awaited No Entry sequel? बी-टाउन की मोस्ट रीसेंट दुल्हनिया रिया कपूर को मिला अपनी ननद करिश्मा बुलानी से एक वार्म वेलकम। करिश्मा बुलानी ने रिया कपूर और अपने भाई करण बुलानी का फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि रिया कपूर और करण बुलानी उनके लिए सबसे खास हैं। Rhea Kapoor married her longtime bae Karan Bulani in an intimate ceremony at her parents' home in Mumbai, जहां उनकी बड़ी बहन सोनम की शादी एक लैविश अफेयर था। रिया एंड करण ने सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स और इमीडिएट फैमिली के प्रेजेंस में 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। टेक अ लुक। रिया कपूर अपने सोशल मीडिया पेज पे हर रोज शादी के नए फोटोज और अपडेट्स शेयर कर रही हैं। उनके साथ उनके परिवार ने भी इस शादी के खास पलों को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर किया है। After Rhea Kapoor's sister Sonam Kapoor shared a heartwarming post calling her the most beautiful bride, अब करण बुलानी की बहन करिश्मा बुलानी ने एक खास सोशल मीडिया पोस्ट के साथ अपनी भाभी रिया कपूर को वेलकम किया है। करिश्मा बुलानी, who is affectionately called Cookie, रिया कपूर और उनके परिवार के बेहद करीब हैं, and she has been one of Rhea Kapoor's and Sonam Kapoor's close friends over the years. कुकी ने रिया एंड करण की एक फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि सच्चा प्यार पूरी दुनिया के लिए वरदान है। She added in her emotional note, the right kind of love between two people has the power to make the whole world a better place, and that's what at Karan Bulani and at Rhea Kapoor have always been about. They are my heroes, my numero unos, my greatest of all blessings. नई दुल्हन रिया कपूर ने अपने नए हस्बैंड के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए and tagged the fashion designer who created his wedding outfit. Rhea Kapoor captioned her post, "Life partner energy, my husband in @KunalRaval official." करण बुलानी ने रिया कपूर के पोस्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया एंड रिवील्ड कि जब रिया कपूर अपने ब्राइडल लुक में तैयार हो रही थीं, वो उनका इंतजार करते हुए कुछ और ही कर रहे थे। करण बुलानी wrote, "दूल्हे राजा practicing blue steel as he waits for Rhea Kapoor to get ready." Rhea Kapoor also shared a post जहां उन्होंने 2 खास फोटोज इंक्लूड किए, एक उनकी बहन सोनम कपूर के साथ और एक करण बुलानी के साथ। Rhea Kapoor wrote कि करण बुलानी और सोनम कपूर उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, and pictures with the 2 people she's closest to made this an emotional post indeed. Here's wishing Rhea Kapoor and Karan Bulani a very happy married life. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेयर किए कुछ बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्पसेस शेरशाह के शूट से। शेरशाह की कामयाबी को एंजॉय कर रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पहली बार एडमिट किया है कि उनके और कियारा आडवाणी के बीच में है एक स्पेशल कनेक्शन। One word when I say Kiara,
Oh, You can say ये दिल मांगे मोर. yeah, Dil Mange More. So bad. I was just about to say looking forward. So Dil Mange More for sure. सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी को मिल रहा है ढेर सारा प्रेज फॉर देयर अमेजिंग परफॉर्मेंसेस इन द इमेंसली मूविंग फिल्म शेरशाह, जो पिछले हफ्ते ही एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है। सिद्धार्थ ने शेरशाह में अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है एंड द एक्टर हु वाज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट फॉर मेनी इयर्स हैज परफॉर्म्ड दिस रोल विद कंप्लीट सिंसेरिटी। Just how did the team manage to capture real life events from the Kargil war with authenticity? Take a look. सिद्धार्थ मल्होत्रा is basking in the success of the film शेरशाह। फिल्म के रिलीज को ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है और सिद्धार्थ रेगुलरली सोशल मीडिया पे फिल्म से जुड़ी यादों को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म के क्लाइमैक्स की शूट से एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है, जहां वो और दूसरे एक्टर्स दुश्मनों के साथ खतरनाक गोलीबारी कर रहे हैं। सिद्धार्थ अपने आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं एंड ही इज फायरिंग हिज गन एंड इवन लॉबिंग अ ग्रेनेड टुवर्ड्स द एनिमी कैंप। सिद्धार्थ ने वीडियो शेयर करते हुए इससे जुड़ी यादों को अपने कैप्शन में शेयर किया। He wrote, recreating the Kargil war. The scene was particularly shot to give the audience a real-life experience of challenges faced by our Indian Army soldiers, while keeping in mind Vikram Batra's character. The feeling of breathlessness is quite natural at 12,000 feet above sea level, although the Indian Army troops are stationed at a much higher peak. While the film is being appreciated for its realistic portrayal of the war and Captain Vikram Batra's sacrifice, उनके और कियारा अडवाणी की केमिस्ट्री की भी बहुत तारीफ हो रही है। There is no denying कि इन दोनों के बीच कुछ स्पेशल बॉन्ड है। नाइस जोड़ी। हाँ भाई बहुत अच्छी है। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू कियारा जी, थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे तो कई दिनों से ग्रेप वाइन का कहना है कि सिद्धार्थ और कियारा आर नॉट जस्ट गुड फ्रेंड्स। जहां एक तरफ दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को कबूल नहीं किया है, वहीं पहली बार सिद्धार्थ ने एडमिट किया है कि उनके और कियारा के बीच शायद कुछ हो रहा है। The actor said, "We both have lives away from the industry and that is something that we connect on and cherish." Well, connection तो हम सबको दिख ही रहा है, बस आप भी अब कबूल कर लीजिए। क्या बातें हुई मधुर भंडारकर और नीरज चोपड़ा के बीच जब वो इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मिले। क्या वो नीरज को स्पोर्ट्समैन से एक्टर बनने के लिए राजी करवा पाए? मधुर भंडारकर इज नोन फॉर हिज फिल्म्स जो रियल लाइफ इवेंट्स और ऑक्यूपेशंस पे फोकस करती हैं। चांदनी बार, पेज 3 और फैशन जैसी फिल्में बनाने वाले मधुर क्या अब स्पोर्ट्स बायोपिक बनाना चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिख दिया है। The young athlete has won the hearts of millions with his achievements and humility, और उनके गुड लुक्स ने कई फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को उनसे पूछने पे मजबूर कर दिया है कि कहीं वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड तो नहीं। इन्हीं में से एक है मधुर भंडारकर who met नीरज चोपड़ा and साइकॉम मीराबाई चानू in New Delhi on Independence Day. मधुर ने अपने सोशल मीडिया पेज पे इन दो स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ लिए गए फोटोज को शेयर किया, जिससे सभी इस सोच में पड़ गए कि क्या वो अब स्पोर्ट्स पर्सन्स पे फिल्म बनाना चाहते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, क्या उन्होंने नीरज से एक्टिंग करने के बारे में बात की।
मधुर रिवील्ड इन एन इंटरव्यू कि जब उन्हें पता चला कि नीरज और मीराबाई उसी वक्त दिल्ली में थे जब वो वहां थे, he couldn't resist meeting them. The director added, I wanted to meet and congratulate them for their success and for making India proud. I didn't meet them to discuss any film. लेकिन उन्होंने नीरज से पूछ ही लिया कि क्या वो एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड है। Given his popularity right now, कई लोग उनके बायोपिक के बारे में या फिर उनके खुद एक्टर बनने के बारे में बात कर रहे हैं। But नीरज has his goals fixed. मधुर ने नीरज का जवाब शेयर करते हुए कहा, I don't want to act, but focus on my game. नीरज के गोल्ड मेडल जीतने के बाद कई लोगों ने ये सुझाव दिया कि अक्षय कुमार को नीरज के बायोपिक में उनका किरदार निभाना चाहिए। To which अक्षय rather wittily responded कि नीरज खुद इतने हैंडसम है कि जब अक्षय पे बायोपिक बनेगा तो नीरज उस पे एक्टिंग कर सकते हैं। अक्षय एक्टिंग में 100 करोड़ फिल्म्स डिलीवर करते रहे और नीरज स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल्स। शायद इसी में ही देश की भलाई है। धूप हो या बारिश, दीपिका पादुकोण पहुंच जाती हैं शूट पे। Looking as glamorous as ever, दीपिका पादुकोण ने अपने शूट के सेट से शेयर किए कुछ खास पल, जहां बारिश से बचते बचाते उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की लीडिंग फीमेल एक्टर है एंड ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्टार्स इन द बिजनेस। दीपिका ने रिसेंटली शकुन बत्रा की फिल्म को रैप किया है एंड शी हैज अ लाइनअप ऑफ हाई प्रोफाइल फिल्म्स वेटिंग टू स्टार्ट वर्क ऑन। अपने फिल्म शूट्स के बीच वो अपने सोशल मीडिया पेज के लिए स्पेशली क्यूरेटेड वीडियोस भी क्रिएट करती हैं, which gives people a glimpse into her life behind the scenes. Take a look. दीपिका पादुकोण ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नया वीडियो शेयर किया है, जहां वो अपने वैनिटी वैन से उतर के शूट की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। मुंबई में फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन वर्क डजंट स्टॉप, स्पेशली जब इतने महीनों बाद सब काम पे लौटे हैं। Deepika Padukone is seen wearing a denim jacket, crop top and jeans as she walks towards the sets under an umbrella. इस लुक में पोज करने के बाद वो अपनी वैन में लौटती हैं and it looks like अपने अगले लुक की डिटेल्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया स्टोरीज पर शेयर किए। Deepika Padukone posted a short video clip from her vanity van, जहां वो अपने अगले लुक में तैयार हो रही हैं। She shared in the video कि वो एक बहुत एक्साइटिंग शूट कर रही हैं। Is this a new brand she is shooting for? या फिर अपनी अगली फिल्म का लुक टेस्ट? Well, hopefully she will share it with us soon. शूट खत्म करके जब दीपिका पादुकोण वैनिटी वैन से घर के लिए निकल रही थीं, उन्हें paparazzi ने स्पॉट किया। The actress stopped to pose for photos before leaving in her car. We can't wait to find out कि दीपिका पादुकोण कौन से प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने वाली हैं। Keep watching this space for all the details. वेट दीपिका जी आप थोड़ा मार दीजिए करके देना प्लीज दीपिका जी प्लीज दीपिका जी बाय थैंक यू। क्या सलमान खान अपनी हिट फिल्म नो एंट्री का सीक्वल का हिस्सा बनेंगे? सलमान ऑलरेडी टाइगर फ्रेंचाइज का हिस्सा है एंड इज ऑल्सो डूइंग अ सीक्वल टू किक 2। ऐसे में क्या एक और सीक्वल का हिस्सा बनने के लिए मानेंगे सलमान खान? सलमान खान स्टार्टेड ऑफ एज अ रोमांटिक हीरो इन बॉलीवुड, जिसके बाद उन्होंने कॉमेडीज और फैमिली ड्रामास में काम किया बिफोर फाइंडिंग सक्सेस विद हिज करंट फॉर्मूला ऑफ एक्शन ड्रामास। Salman is currently busy with the shooting of Tiger 3 with Katrina Kaif, जिसके बाद उनके ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। क्या उनके करियर की बिजी गलियों में ये नो एंट्री सीक्वल एंट्री ले पाएगी? टेक अ लुक।
सलमान खान की 2005 फिल्म नो एंट्री ऑडियंसेस में काफी पॉपुलर हुई थी। फिल्म में सलमान के साथ अनिल कपूर, लारा दत्ता, सेलिना जेटली, ईशा डियोल और बोमन ईरानी भी थे। कई दिनों से रूमर्स चल रही हैं कि नो एंट्री का सीक्वल प्लान हो रहा है, जिसमें सलमान एक कैमियो अपीयरेंस करेंगे। दो अ न्यूज रिपोर्ट सलमान और फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट नहीं करने वाले। सूत्रों का कहना है कि अ सीक्वल टू द 2005 फिल्म इज इन द वर्क्स। रिपोर्टेडली सीक्वल की कहानी लिखी जा रही है, जिसमें सलमान का रोल इस बार और भी बड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। इन द ओरिजिनल फिल्म हिज वाज एन एक्सटेंडेड कैमियो, लेकिन इस बार भाईजान फिल्म में शायद एज अ मेन लीड एंट्री ले। सुनने में ये भी आ रहा है कि अनीस की जगह कोई और इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं। But while the makers sort out everyone's entry and exit, सलमान जा रहे हैं कटरीना के साथ all the way to Russia, जहां वो टाइगर 3 के अगले स्केड्यूल को शुरू करेंगे। रशिया में लैंड होने के बाद सलमान, कटरीना एंड टाइगर 3 का पूरा क्रू टर्की और ऑस्ट्रिया जैसे दूसरे यूरोपियन नेशंस में भी शूट करेंगे। YRF is reportedly chartering a private plane to fly the entire team together. Though safety protocols are a concern, फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा टाइगर 3 के स्केल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। A source added, they have planned Tiger 3 to be a visually spectacular theatrical experience. Thus, this schedule will add a lot to the film's visual extravaganza, and some never-seen-before action sequences will be filmed. Well, looks like हमारे टाइगर उर्फ भाईजान उर्फ सलमान खान सीक्वल एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। But then again, 100 करोड़ हिट पे 100 करोड़ का सीक्वल किसे पसंद नहीं होगा? Well guys, it's time for a very quick break on the show, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was this perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन thanks to social media, आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। Here are the top 5 stories from the world of television and social media making headlines today. Take a look. Did they or didn't they? क्या सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने किया किस एक डांस रियलिटी शो के लव स्पेशल एपिसोड पर? सिद्धार्थ शुक्ला and शहनाज गिल have been making special appearances as a couple on multiple reality shows. और जब वो एक डांस रियलिटी शो के लव स्पेशल एपिसोड पर एक साथ आए, उन्होंने दिल तो पागल है से एक इंटेंस सीन को रिक्रिएट किया। लेकिन एपिसोड के ट्रेलर से ये पता नहीं चल पाया कि क्या इस रूमर्ड कपल ने ऑन स्टेज किस किया या नहीं। Watch the episode to find out. माधुरी दीक्षित, भारती सिंह और तुषार कालिया डांस दीवाने सीजन 3 के सेट्स पे इमोशनल हो गए। इस डांस शो पे लव स्पेशल सेलिब्रेट हो रहा था and the judges were moved to tears when 2 of the contestants portrayed the love between a stray dog and a homeless man. डांसर्स की हार्ट-रेंचिंग परफॉर्मेंस देख के जजेस और होस्ट भारती सिंह अपने आंसू रोक नहीं पाए। बिग बॉस OTT वर्जन जो करण जौहर होस्ट कर रहे हैं इज विटनेसिंग हाई ड्रामा। इस हफ्ते सारे कंटेस्टेंट्स एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हुए हैं since they were not able to complete the nomination task successfully, जिसकी वजह से अब सारे कंटेस्टेंट्स एलिमिनेशन के कटघरे में खड़े हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का तीसरा सीजन एक महीने में ही ऑफ एयर जाने वाला है। The show with stars Shahir Sheikh and Erica Fernandez went on air just a month ago. फैंस इस रूमर से काफी अपसेट हैं। According to some reports on social media, इस शो को रिप्लेस करने वाला है बड़े अच्छे लगते हैं का सेकंड सीजन स्टारिंग नकुल मेहता एंड दिशा परमार। निया शर्मा दुबई में है and she seems to be having a blast with her group of friends, जिसमें शामिल है रवि दुबे, अर्जुन बिजलानी, नेहा बिजलानी and others. निया शर्मा ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है जहां वो एक ग्रीक रेस्टोरेंट के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए प्लेट्स तोड़ रहे हैं और टूटे हुए प्लेट्स के अराउंड नाच रहे हैं। निया शर्मा and रवि दुबे were also seen separately breaking some plates as per the custom of the restaurant. Well guys, with that we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite stars. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.